اور آج ہم سون زن لیفٹنٹ گورنر صاحب یم زن آج بیاکھ مداخلت کر یم زن یتک ملازم یہ کرن تبدیل حالانکہ تمس تی کرن یہ تہندس حق ارادس مز یہ ونکس عوام حکومت یہ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل یہ تنظیم تھی وچھو یہ سا جماعت یمو رات دینس من مداخلت کرت ہندوستان کس پارلیمنٹس مز اکثریت کس بنیادس پہ وقت بورڈ ایکٹ کور پاس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہندوستان مسلمان جموں کشمیر مسلمان یہ سا بناون تریمہ درجک شہری اسرائیل وچان غازہ وچان یہ سیودے سانس مذہبی معاملات من مداخلت. اس وقت ہم موجود ہیں نیشنل کانفرنس پلوامہ کے آفس میں اور آج یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے ورکرز جو ہے ان سے انٹریکشن یہاں پہ کریں گے جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پلوامہ خلیل بند صاحب اور جو ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر صاحب ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. بہت سارے یہاں پہ مسئلے ہیں لوگوں کے تو یہاں پہ جو ڈسکس کیے جائیں گے اور ہم جاننا چاہیں گے ایکس ایم ایل اے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے پلوامہ کے خلیل بند صاحب ان سے بھی بات کریں گے اور جو راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر صاحب ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تھی عمر عبداللہ کی طرف سے اس میں کیا رہا اور جو وقف بورڈ بل پاس کی گئی تو اس پہ کیا ڈیسیجن لیا گیا تو جاننے کی کوشش کریں گے. آئے چلتے ہیں ایکس ایم ایل اے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پلوامہ خلیل بند صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جو راجپورہ کے ایم ایل اے ہے غلام محی الدین میر صاحب ان سے بھی بات کریں گے. ہم ان سے جانیں گے کہ جو کل میٹنگ میں کیا رہا, جو ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی تو اس میں کیا ڈیسیجن لیے گئے اور جو وقف بورڈ بل پاس کی گئی تو اس میں کیا رہا وہاں میٹنگ میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. آج بنو دبت ریال ہسا گھس واتی کٹرا کٹرا پہ گھس واتی کشمیر ووٹس کٹرا من فون وال پہ کٹرا پہ فون دیو ات کس لگ ذکر ات کیا سۭتی کران یم جائیں سب گھس آسن سری نگر یا بارہمولہ ریل. اور آج ہم سون زن لیفٹنٹ گورنر صاحب یم زن آج بیاکھ مداخلت کر یم زن یتک ملازم یہ کرن تبدیل حالانکہ تمس تی کرن یہ تہندس حق ارادس مز یہ ونکس عوام حکومت یہ بائی دا پیپل فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل یہ کامیاب گھن برو جوش آسان پہ نعرہ زٕ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جناب فاروق صاحب جناب فاروق صاحب جناب عمر صاحب جناب عمر صاحب میں پاکستان تک یہ وونمت یت گامس من میں جلسہ یت گامس من بہ گوس مے وون تتہ تکیازِ مے چھ وچھمٕژ تُہنٛز سختی ییٚلہِ بہٕ تہِ اوسُس ساڑن 5 ؤرین بنٛد ییٚتہِ دفترس منٛز مے چھ تِمن ؤرین تہِ تُہنٛز سختی وٕچھمٕژ برابر 2014 پٮ۪ٹھ اوترٕ 2015-24 تامتھ اکتوبرس تامتھ سانٮ۪ن یِمن ورکرن یِم سٲنۍ ورکر ٲسۍ نیشنل کانفرنس یِمن کِتھ پٲٹھۍ گٔے پریشان یِم کِتھ پٲٹھۍ خدا نخواستہ مصیبت آو. ورکرز کی میٹنگ یہ تو تنظیمی مسئلہ ہے, یہ تو ہمیں بلانی ہے کیونکہ میں ابھی کامیاب ہو گیا. پھر اسمبلی اسی کے ساتھ سیشن بھی آ گیا. سیشن کے بعد آج میں نے یہ چونکہ آج فرصت تھی آج میں نے ان کو بلایا تھا یہاں. ہمیں چونکہ فائنانشیل ایئر شروع ہونے والا ہے نیا کام کرنے ہیں لوگوں کے لیے, کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی کام ہے یا ہمارے ورکر ہے سیدھا ورکر ہے ان سے بات کی اور اسی سلسلے میں ہم نے میٹنگ بلائی. اور کوئی میٹنگ نہیں ہے, یہ تو صرف لوگوں کو جنہوں نے انہوں نے ہم پر اعتبار کیا, ہمیں ووٹ ڈالا. ہمیں تو اب
उन्होंने उस वक्त खड़े रहे हमारे लिए, वोट डालने के इस दिन मेहनत की, आज हम अभी 5 साल उनके लिए खड़ा रहना है। ये सब कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, तो उस मीटिंग के हवाले से क्या सबसे बड़ा बहरान आया हिंदुस्तान में, जो उन्होंने बिल, जो पार्लियामेंट ने बिल पास की है, ये जो इसमें जो अमेंडमेंट की है वक्फ एक्ट में, जो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट लाई, तरमीम की है उसमें, जिसके अगर बिल उसकी बिल की वजह से, तरमीम की वजह से मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में आज मुसलमानों पर उन्होंने हमला किया है, और आने वाले वक्त में वो बाकी माइनॉरिटीज़ पर भी हमला करने वाले हैं। ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की एक साजिश है, मुसलमानों को अलग थलग करने की साजिश है, और मुसलमानों को ये बावर करना है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन्स हो यहाँ हिंदुस्तान के, आपको कोई हक नहीं है हिंदुस्तान में आवाज़ बुलंद करने की या बात करने की। ये कल इसी सिलसिले में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई थी कि ये जो उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल यहाँ पास की है, उसके खिलाफ हम टोटल उसके मुखालिफ है, हम उसको नकारते हैं, और इसकी मुखालफत जिस स्टेज पर भी करनी होगी हम उस स्टेज पर इसकी मुखालफत करें। साहब कुछ लोग यहाँ पे मिले हमें चकुरा पुलवामा से, तो उनका कहना है कि वहाँ पे 3 सालों से जो इरिगेशन प्लांट है वहाँ पे बना गया, या पीएचसी की बात करेंगे, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। लोग तो सबसे बड़ा मसला है वो कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले कई सालों से, जो लिफ्ट इरिगेशन वहाँ चल रही है। अब इस पर काम शुरू हो जाएगा, इसमें करीबन 4.25 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, उस पर काम शुरू हो जाएगा। आने वाला वो प्रोजेक्ट भी अभी अप्रूव होने वाला है और उस पर काम शुरू हो जाएगा। इस साल काम हो जाएगा, उनको वो जो लिफ्ट इरिगेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये किस मुसलमान त्रेमे दर्जुक शहरी बनाओ, हिंदुस्तान मुसलमान जम्मू कश्मीर मुसलमान यह बनावन त्रेमे दर्जुक शहरी, इसराइलस मज वुचान, गाजास मज वुचान, यह सोदे सानिस मजहबी मामलातन मज मुदाखलत, यह इंसानियती मामलातन मज मुदाखलत। तुम वुचिव यह सह जमात यमो रात दीनस मज मुदाखलत करित हिंदुस्तान किस पार्लियामेंटस मज अक्सरियत किस बुनियादस पे वक्फ बोर्ड एक्ट कोर पास, सो यह एक्ट कोर पास, तथ कर मजम्मत, तथ कर मजहबती तहरीक कर पास, यम अत सम तुलो अत थोद कर गुजारिश, लिहाजा तथ पे वावेला कर तहसीलदार कुस गु पुलवामी, DC कुस गु पुलवामी, SP कुस गु पुलवामी, दपान मैंडेट की यथ हुकूमत अगर मैंडेट बाज़ाब्त तौर जहाज पास कर कामयाब बनाने। तो बंद साहब आपका खैर मकदम है कश्मीर पल्स में। जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई, तो इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नर साहब ने जो ट्रांसफ़र की है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाईपास किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारा ये है कि इसके मुतलक हमें जो मीटिंग कल हुई उसमें ये नहीं था कि गवर्नर साहब ने ये तब्दीलियां की तो हमसे पूछे बगैर, मगर एक बात है, इसमें बहुत सारे मसाइल उभारे, जिसमें वक्फ बोर्ड का जो एक्ट पास हुआ जो मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों के वो जायदाद जो अल्लाह के नाम पर लोगों ने वक्फ किया, किसी ने उस पर जबरन कब्जा नहीं किया है, वो लोगों ने या वक्फ किया है अल्लाह के नाम पर। ये दीन में एक मुदाखलत, इसलिए वो मीटिंग तलब की गई थी। उसको उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये जो हुआ ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, अखलाक के खिलाफ है। किसी भी महज़िब दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, अगर पुलवामा की बात की जाए तो पुलवामा के जो लोग हैं, मतलब बहुत मसाइल है लोगों के, क्या वो हल हो रहे हैं? मसाइल जो हैं लोगों की पिछले
जब से 5 अगस्त 2019 हुआ तब से मसाइल ही मसाइल हुई, बेरोज़गारी बढ़ गई, ज़बानी जमा खर्चा बहुत है, मगर ग्राउंड पर कोई काम हुआ नहीं। अब हुकूमत को कुछ महीने ही असम्बली बन गई और अवामी सरकार वजूद में आई। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, खजाना खाली, अब बजट पास हुई। इंशाअल्लाह रहमान अब इस महीने से अब काम शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह जो मसाइल यहाँ के होंगे पुलवामा ज़िले के, हर कोई मसला हल हो जाएगा। किसी के पास जादू की छड़ी है ना रातों रात सब कुछ ठीक हो। 5 साल का मैंडेट है, 5 साल लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप जो हमने मैनिफेस्टो दिया है उस पर संजीदा हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, और इसमें जो अलायंस हमारे साथ हुकूमत में है वो कमिटेड है। जो हमने एक मंशूर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उसको हम हरफ बहरफ पाए तकमील को पहुँचाएं। अच्छा, और एक मसला है जो पुलवामा की अगर हम बात करें तो पुलवामा में हमें टूरिस्ट स्पॉट या डेस्टिनेशन उस पर बात भी की है। अगर हम उसमें भी ये मसला उठाया इंशाअल्लाह रहमान, जो ये हमारा मसला है यहाँ जो पीर की गली तक और इधर कैलर एरिया या संगरवनी एरिया या उधर जाइए आप, ये त्राल इलाका, शिकारगाह है, नागबेरन है, बट यहाँ का टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट यहाँ होना चाहिए, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। ये जो पुलवामा ज़िला है ये टूरिस्ट के लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। ऐसी स्पॉट्स हैं जो पहलगाम से भी बड़ी बेहतर है, गुलमर्ग से भी बेहतर है और बंगस वादी से भी बेहतर, मगर आज तक हालात की वजह से, हालात कुछ ऐसे थे उन जगहों पर नहीं पहुंच पाए। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट है और साहब ने वादा किया है कि पुलवामा को भी हम सियाहती नक्शे पर ज़रूर, आपकी वसादत से मैं ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात पहुंचाना चाहता हूं। टोल प्लाजा जो चरसू में वाक़ा है आवनपुरा, आप उन रोडों पर भी ये फाटक लगा रहे हैं जहां टोल, कोई टोल नहीं है, टोल सड़क है ही नहीं है। वो ये लोगों के साथ जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। ये लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ है, गरीबों के ख़िलाफ़ है। यहाँ पुलवामा के रहने वालों के लिए बहुत संगीन मसला है। इससे हमारी तरक्की रुक जाएगी, इससे हमारे ये जो है इक़्तिसादी हालात पर बुरे असरात मुरतब